Hello everyone, welcome to the session. And in today's session, we are going to start with a round robin. What is a round robin? Robin is the name of a person, okay, but here we are not considering a person. Here we are going with a round robin, and this is a part of games and tournaments, and it is a one of kind of tournament. Like last tournament we have gone through was a knockout, and okay, knockout tournament was last tournament which we have seen. This is the round robin. What how it is different from our knockout tournaments, this is what we are going to see today, and we are going to solve some good sets of round robin. And in coming days we are coming with a mixed set, like you can see a timetable also. I already shared the timetable in our channels. You can just check out this timetable, which session is tomorrow or which session in upcoming week. Okay, तो पूरे एक वीक का टाइम टेबल शेयर कर दिया है मैंने. डोंट आस्क मी कि कल क्या है, आज क्या होगा. Also guys, if you want these course like जो भी हम पढ़ा रहे हैं, whatever we have took or taken so far, आप वो सब कुछ अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, यू कैन लुक फॉर दिस कोर्स. ये आपको फ्री में अवेलेबल हम करवा चुके हैं ऑलरेडी. प्रेपबी पे जाओ, prepbee.in पे जाओ, ठीक है. वहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा. यू कैन सिंपली गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ एंड एनरोल इनटू इट. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. Apart from this, if you are looking for a mentorship, you can just simply check out these some courses. Okay. And if you are not interested to go visit a prepbee.in, it's okay. No need, मतलब कोई जाने की जरूरत नहीं है. Simply go to YT channel. YT पे जाओ, इतना कष्ट तो करना पड़ेगा. prepbee.in, prepbee पे जाओ YT channel में. When you go to prepbee, you can see a playlist. We have curated a playlist which are also organized manner. So सब मिल जाएगा आपको वहाँ पे. Let's go ahead. Round robin. क्या पता है आपको राउंड रॉबिन के बारे में गाइस? किसी ने मैच देखा है? राउंड रॉबिन कहाँ पे होता है, कोई कुछ बताएगा? चलो बताओ कुछ, जो भी बताओ आपको राउंड रॉबिन के बारे में. व्हाट डू यू नो अबाउट राउंड रॉबिन? आईपीएल समर. ओके यार, आईपीएल. राउंड रॉबिन जैसे ही बोले समर आईपीएल. ठीक है. आईपीएल के अलावा कुछ देखा है आपने, इसके अलावा एनीथिंग? ईपीएल, यूरो लीग. ओके. सो ईपीएल आईपीएल, these आर द थिंग यू नो ओनली. एनी डिटेल, क्या होता क्या है राउंड रॉबिन में, कोई बताना चाहेगा? अच्छा, इंग्लिश प्रीमियर लीग है क्या ईपीएल? यूरो लीग बोल रहे, समवन सेइंग यूरो लीग. आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस. ये बताए. आईपीएल पता है सिर्फ मुझे, आपको भी पता ही होगा. सो लेट्स कम टू राउंड रॉबिन. लाइक इन लास्ट टूर्नामेंट विच इज अ नॉकआउट टूर्नामेंट, what happened here, if there is a match between two players or two team, okay, two team is playing, let's say team A and team B is playing each other, and if one of them win and second one lose the match, then the winner of the team will go ahead in the tournaments and loser will go out of the tournament, right? This is the what of knockout tournament. Now in round robin, it is not like a knockout tournament. In this tournament, what we can do, in first round, let's say if there was a four team, or four team come away, let's say eight teams. There are eight teams. Okay, there are eight teams in a tournament, and so round robin में होता क्या है? These eight team will play with, like let's say there was eight team like A B C D E F G H I. आठ हो गया ना, एक ज्यादा हो गया, ठीक है. Okay. So if these are the eight teams playing in a round robin tournaments, what happened? A will play with each of the player. Similarly, B will play with each of the player. It means every player will play with every other team. Like whatever team are there, like A पूरे सात के साथ टीम के साथ मैच खेलेगा. Similarly, B will going to play with the other seven teams. Okay. And after this, we will create a chart, or you can simply say tally table. ए ने कितना जीता, बी ने कितना जीता, एंड अकॉर्डिंगली जो टॉप परफॉर्मिंग टीम होते हैं ना,
टॉप परफॉर्मिंग टीम जो भी होते हैं, ओके, वो टीम कहाँ पे जाते हैं? दे विल गो टू नेक्स्ट स्टेज, और यू कैन सिंपली से नेक्स्ट राउंड, स्टेज और राउंड वॉट एवर यू कैन से। सो सिमिलरली देखो, स्टेज और राउंड दोनों एक ही होते हैं, कंडीशन अच्छे से पढ़ लेना। तो दिस इज व्हाट अ राउंड रॉबिन। होप इट इज क्लियर। राउंड रॉबिन में होता क्या है, जो टॉप परफॉर्मिंग टीम होते हैं, पहले होता है क्या, सारे के सारे टीम मतलब अगर 8 टीम है तो आठों मतलब सबके बीच में मैच होगा। दे विल प्ले मैच विथ ईच अदर, ओके। आफ्टर प्लेइंग द मैच, दोज हु आर अ टॉप परफॉर्मिंग टीम, top 4, top 5, whatever as per the condition, they will go to the next stage or next round. Then they will play with each other. Or maybe there was a next round should be a knockout round. It depends. So it will be given to you which stage is which round. Might be there is possibility. So next round should be a knockout now round. And you can see in IPL, we can say double round robin. In IPL, we will say double round robin. Why it is? Because the next stage was also round robin stage. There also each team will play with each other team. Okay, so this is what the round robin and double round robin. डबल क्यों हुआ? क्योंकि दो बार हुआ है, एक बार स्टेज 1 पे राउंड रॉबिन हुआ, एक बार स्टेज 2 पे राउंड रॉबिन। ओके गाइस, होप इट इज क्लियर। इफ इट इज क्लियर, लेट्स गो एट सम मोर बेसिक पार्ट, लाइक द नंबर ऑफ मैचेस एंड ऑल, हाउ यू कैन काउंट दिस थिंग्स। तो चलो उसे करते हैं। यहाँ पे किसी को डाउट था पहले ही बता दो, कुछ भी हो डाउट बता दो, विल ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके क्या? ओके अवनीत, ओके अवनीत, यू कैन टेक अ रेस्ट, गेट वेल सून। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है? इफ देर इज नो डाउट, लेट्स गो अहेड, लेट्स स्टार्ट, चलो। सो एज आई टोल्ड यू, हाउ शुड यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस, लाइक इन नॉकआउट टूर्नामेंट? द सिंपल इज, आपको कैसे टोटल काउंट करना था? लाइक टोटल नंबर ऑफ मैचेस in knockout tournament, you can simply count it, simply n minus 1. N is number of team or number of players, simply minus 1 कर दो उसमें से, तो you will get a number of matches, total number of matches. बट यहाँ पे कैसे निकालोगे? यहाँ पे कैसे निकालोगे? तो सिंपल है, देखो, एक, द वन थिंग you should know a trick or a formula, simply we can say the formula is something like, क्या था formula? NC2, yeah, the formula is NC2. Now it is nothing but a combination of टू टीम। NC2 का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ, लाइक, ये कॉम्बिनेशन अगर आप पढ़ोगे पीएनसी में पढ़ोगे ये, तो इसका ही पीएनसी है ये, सी मतलब फॉर कॉम्बिनेशन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, इसका एक फॉर्मूला है NC2 का, एंड दिस इज नथिंग बट लाइक, व्हाट, क्या कहते हैं यार, रुक जाओ मैं खुद भूल गया फॉर्मूला। N फैक्टोरियल अपॉन, गिव मी अ मोमेंट यार, इससे अच्छा यार NC2 पे जाओगे तो सिंपल फॉर्मूला एन, एन माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर दिस, ठीक है? एन माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला फॉर NC2। मतलब इसको इवेल्युएट करोगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो डीप डाउन इनटू पीएनसी, क्योंकि अगर मैं पीएनसी समझाऊंगा तो आप फिर बोलोगे ये क्या है। तो ये पीएनसी को पीएनसी में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं, ठीक है? अभी के लिए इतना समझ जाओ। और इन शॉर्ट, अगर ऐसे आपको नहीं भी समझता ना, तो एक जो सिंपल बेसिक लॉजिक वाइज है, अब ऐसे चल लो। जैसे कि लेट्स से, ये तो फॉर्मूला हो गया, बट मैं कभी इसका यूज करता नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। आई मोस्टली यूज द सिंपल मेथड, द सिंपल अप्रोच। सिंपल अप्रोच इज व्हाट? इफ देर वॉज अ 10 टीम, अगर 10 टीम है तो आई नो एक प्लेयर तो ऐसा होगा ही, लेट्स से ए वाज आल्सो इन अ टीम, ए मस्ट बी गोइंग टू प्ले विद अदर 9 पीपल, अदर 9 टीम, राइट? ए तो पक्का पक्का खेलेगा या बाकी 9 के साथ। इफ ए इज गोइंग टू प्ले विद अदर 9 टीम, सिमिलरली देर वॉज ऑल्सो बी सी डी एंड अदर, दे मस्ट बी ऑल्सो गोइंग टू प्ले विद ईच अदर, होगा ना? तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, हर एक बंदा अगर 9 मैच खेल रहा है,
हर एक बंदा अगर 9 मैच खेल रहा है तो कितने बंदे हैं? 10 बंदे हैं। टोटल कितने बंदे हैं? 10। तो 10 × 9 मैचेस, दैट्स इट। दिस इज अ टोटल। अब अब एक यहाँ पे भी ट्विस्ट है कि आप तो बोल दोगे कि यार 10 बंदे खेल रहे हैं 9 मैचेस, तो यहाँ पे 90 मैचेस तो हो गए। बट रिमेम्बर, द थिंग इज, अगर किसी ने ए ने बी के साथ मैच खेला और बी ने ए के साथ मैच खेला, क्या दोनों बात एक ही नहीं हो रही है? बात तो एक ही हो रही है ना गाइस। इधर ए विल प्ले विद बी और बी विल गोइंग टू प्ले विद ए। वी आर टॉकिंग अबाउट सेम थिंग, राइट? सो इन दिस केस वी आर काउंटिंग इच, लाइक वी आर काउंटिंग डबल। ये डबल काउंटिंग हो गई है। यू कैन सिंपली से यहाँ पे डबल काउंटिंग हो रही है। इट मीन वी हैव टू डू हाफ ऑफ दिस। सिंपल हाफ कर दो इसका। तो देयर आर हाउ मेनी मैचेस? 45 मैचेस। तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है अगर ऐसे काम हो जाए तो। और फॉर्मूला भी अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। NC2 इज नथिंग बट n/n - 1/2। यहाँ भी वही बात हो रही है, देख लो। n मतलब क्या है, कितने मैचेस है? और इफ आई एम सेइंग 10C2, सिंपली 10 × 9, एंड दिस इज 2। सिंपल कैंसिल कर लो तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 45। तो कैसे भी कर लो, बात वही हो रही है। बस आपको कैलकुलेट करना है। चॉइस इज योर्स। हाउ हाउ यू गोइंग टू लाइक कैलकुलेट द थिंग। तो नंबर ऑफ टोटल मैचेस समझ में आया? दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ टोटल मैचेस। यू कैन डू इट विदाउट द फॉर्मूला ऑल्सो, बट टिपिकली अगर आप कहीं जाओगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा, तो इसलिए समझा दिया फॉर्मूला ये है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इन दिस टूर्नामेंट देयर आर नो ड्रॉ। दिस इज रिमेंबर, राउंड रॉबिन में ड्रॉ नहीं होता है। ओके, ड्रॉ नहीं होता है। रीजन बिहाइंड, एक टीम को जीतना ही पड़ता है, और अगर ड्रॉ हो भी रहा है तो कुछ कंडीशन वहां पे मेंशन होगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस ड्रॉ वहां पे नहीं होता है। रिमेंबर, देर इज नो ड्रॉ इन राउंड रॉबिन। एक विनर होगा, एक लूजर होगा। ठीक है। एंड इन केस अगर गलती से ड्रॉ हो भी गया, अगर ड्रॉ हो गया तो हम अब उसे टाई ब्रेकर से हम क्या करते हैं, टाई मैच भी करवाते हैं। ये दोनों में होता है। ये टाई ब्रेकर वाला जो थिंग है, ये आपको उसमें ही मिलेगा, इसमें ही मिलेगा। सो दिस यही कुछ है, मतलब इसके ज्यादा तो कुछ है नहीं। कुछ तो बेसिक, इसके बाद जो भी बेसिक्स है, हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट नॉट। ओके, सो इफ दिस इज क्लियर, डू लेट मी नो। लेट्स कम टू द सेट। इज माई स्क्रीन परफेक्टली विजिबल एंड आई एम परफेक्टली ऑडिबल? क्या मतलब, मैं ऑडिबल नहीं हूँ? ये बता दो। मैंने आज पूरा क्रोमबुक पूरा रीस्टार्ट मारा है, तो मुझे कुछ पता नहीं, कुछ फंक्शन कुछ कहीं से बंद हो, आपको पता ना चल रहा हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो, if we are good to go, let's come to the set. And this is what our first set is. Do you guys want to try it from yourself, or want me to explain this set, then you will try the second one? Do let me know. If you want to try it, good to go. You can try. Have a try. क्या करना है जल्दी बोलो। प्रतिष्ठा, अंशु, समर। क्या नहीं करना है क्या ट्राई? चलो मैं ही करवा देता हूँ, डोंट वरी। डोंट वरी, अगर ट्राई नहीं करना है तो कोई बात नहीं। ट्राई करना है, अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ, ट्राई करना है बोलो तो सही। ओके, टेक अ लाइक लेट्स से, let's first read the set and understand the set, or let me explain you the set, then you can try, शायद आप फिर कर लो। there was 10 team, कितने टीम है? 10 टीम है। 10 teams, and they participate in championship challenge, were divided into two pools, pool A and pool B. Okay, let's see here। अब pool A pool B कर दिया इनने। there is pool A and there is pool B। अभी pool A pool B क्या है? कुछ नहीं किया। pool A मतलब उन्हें 10 जो टीम थे हमारे पास, they divided them into two parts। the 5 teams should be here,
एंड 5 हियर। ओके, तो 5 उधर है, 5 इधर कर दिया, बस ये किया उन्होंने। एंड देन लेट्स कम टू ईच टीम इन अ पूल वॉज प्ले एवरी अदर टीम इन दैट पूल। तो देखो ये जो 5 प्लेयर है ना इस टीम के, ये 5 इसी में प्ले करेंगे पहले, और ये 5 इसी में प्ले करेंगे। ओके, दिस इज व्हाट द सेकंड पॉइंट इज मेंशनिंग। 2 पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर विन। ओके, सो फॉर विन, जीत के लिए कितने पॉइंटर्स है? 2 पॉइंट्स। एंड 0 पॉइंट फॉर द लूज। एंड लॉस के लिए कितना है? लॉस के लिए है 0। एंड देयर बीइंग नो ड्रॉज और ट्राई, तो इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि यहाँ पे कोई ड्रॉ नहीं होगा, यहाँ पे कोई ट्राई नहीं होगा। द टॉप 3 टीम इन ईच पूल वुड एडवांस टू नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड सुपर 6 स्टेज। ओके, अब यहाँ से जो है ना, इसमें से जो टॉप 3 होंगे, टॉप 3 यहाँ से, एंड सिमिलरली टॉप 3 फ्रॉम हियर, they will go to the next stage, and that will call the super 6 stage. And they would carry forward all points they scored in match against the other two team which advanced to the super 6 stage from its pool. अब उसके बाद क्या होगा? जो 6 स्टेज में होंगे उसमें से जो दो टीम होंगे वो एडवांस होंगे नेक्स्ट स्टेज में। ओके, इन सुपर 6 स्टेज all team have that advanced from pool A are to be in group 1, and all team that advanced from a pool B are to be in group 2. Okay, अगर एक मिनट। So yeah, what is saying, the top 3 team in each of the pool advance to next stage, and then what कहाँ पे थे हम? yeah, कैरी फॉरवर्ड ऑल पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स हो लेके जाएंगे आगे में, ऐसा नहीं कि छोड़ के आ जाएंगे। एंड दे विल प्ले मैच अगेंस्ट अदर टू टीम विच एडवांस। अब देखो एक चीज और है, एक चीज और हो रहा है यहाँ पे, एक जो यहाँ पे हो रहा है, ये टॉप 3 टीम है ना, ये खुद में फिर से मैच खेल रहे हैं। ठीक है, जो 1 टीम है जो वो बाकी 2 के साथ मैच खेलेगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। In the Super 6 stage, all the teams that advance from Pool A are to be in a Group 1, and all the teams that advance from Pool B are to be in Group 2. Each team in a Group 1 play against every team in a Group 2, which advance, which awarded as in the pool stage. At the end of the Super 6 stage, the top 2 team in each group, according to their total points, like a Super 6 points and carry forward points, advance to semi-final with the top team in the Group 1 playing the second टीम फ्रॉम द ग्रुप 2, एंड वाइस वर्सा द विनर ऑफ द सेमीफाइनल एडवांस टू फाइनल्स। मतलब यार लंबा राउंड है, अगर ये समझ में आ रहा है यू कैन ट्राई, नहीं समझा तो मैं बताऊंगा फिर कि वो आई एम गिविंग यू अ 7 to 8 minutes। ठीक है, बिकॉज इट वॉज आवर फर्स्ट सेट, तो 7 से 8 मिनट लो, ये बनाओ, बाकी फिर मैं समझाता हूँ अगर नहीं बने तो। ओके, चलो ट्राई करो इसे। तो ये दिखने में थोड़ा है टफ, इनिशियल डेज में करोगे, अभी फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा आपको थोड़ा हेक्टिक लग रहा हूँ कि यार ये क्या आ गया, बट हाँ कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप सही हो जाएगा। चलो एक न्यू पेज पे हम इसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं लग रही है, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है हमें। एंड इन दिस काइंड ऑफ सेट्स, मतलब ऐसा अगर सेट्स आए तो यहाँ पे ज़्यादातर हम क्वेश्चन के थ्रू ही सॉल्व करते हैं, बट वो ये हमें कंडीशन समझ में आया या नहीं वो इम्पोर्टेंट है। तो एज इट इज मेंशनड हियर, हमारे पास 10 टीम्स हैं, एंड इन 10 टीम्स को हमने क्या किया, वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पूल, दैट इज we said a pool A, and second one is pool A ही था ना, if I'm not wrong, तो pool A and second one is pool B। pool A pool B में हमने क्या किया, 5 5 टीम्स को रख दिया, यहाँ पे 5 टीम, यहाँ पे 5 टीम, एंड दिस वाज अ स्टेज 1, यू कैन सिंपली से, ये हमारा जो था स्टेज 1 था, S1 कह दो। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 5 टीम है, इन्होंने एक दूसरे के साथ मैच किया, दे प्लेड मैच विद ईच अदर। इफ दे प्लेड मैच विद ईच अदर, हाउ मेनी मैचेस आर इन टोटल हैव डन हियर, कितने मैचेस टोटल हुए? आई वुड सिंपली डू 5 into 4 अपॉन 2, राइट?
Am I correct? So if you solve this, it is you will get it is 10 matches. Similarly here also 5 ही है तो यहाँ भी कितने मैचेस हुए होंगे 10 मैचेस. So in round 1 or stage 1 there was 10 matches. ओके स्टेज 1 में कितने मैचेस है 10 मैचेस पूल ए में हुआ 10 मैचेस पूल बी में हुआ टोटल इन टोटल देर आर कैन से टोटल में 20 मैचेस हुए थे यहाँ पे. मैं ये क्यों कैलकुलेट करते जा रहा हूँ बिकॉज आई नो देर मस्ट बी वन क्वेश्चन विच गोइंग टू आस्क मी कि नंबर ऑफ मैचेस बताया कुछ यू कैन सी सिंपली टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन द टूर्नामेंट. तो हमने वही कर लिया यहाँ पे. अब क्या हुआ नाउ इन स्टेज 2 और द नेक्स्ट जो भी राउंड था उसमें क्या हुआ जो टॉप टीम थे ना यहाँ पे पूरे ए के टॉप टीम फ्रॉम दिस और टॉप टीम फ्रॉम दिस लेट्स से यहाँ पे जो टॉप थ्री टीम्स थे वो क्या हुआ नेक्स्ट नेक्स्ट राउंड में गए. They will go in the next round, and from here also there are top three team will go in the next round. And this stage we call simply हम सुपर S2 कर देते हैं. ठीक है स्टेज 2 बोल देते हैं हम. बट इन्होंने क्या किया है इस टेस्ट को इस वाले स्टेज को इन्होंने नाम दिया है दैट नेम इज सुपर 6. Why Super 6? Three from here, three from here, six player. That's why Super 6 is the name of this stage. अभी अगर ये आपको समझ रहे हो सुपर 6 यहाँ तक आगे सब पहले स्ट्रक्चर समझ लो बाद में क्वेश्चन कैसे करते हो उसे सॉल्व करेंगे. ना फ्रॉम हियर ऑल्सो अब क्या है ना इनको हमने क्या किया है अब जो पूल ए से टीम आई थी मतलब ये पूल ए के 3 टीम है टॉप 3 टीम दीज आर द फ्रॉम पूल बी we have given them to this team. We said this team will be a group 1. What we said this team? We simply said these are nothing but group 1. Simply say G1. These are the team nothing but group 2 and we can say G2. Got it? ये ग्रुप 1 के 3 टीम है ये ग्रुप 2 के 3 टीम्स हैं. होप इट इज क्लियर. यही वहां पे लिखा हुआ है जो वहां लिखा है मैं उसको बस यहाँ पे डिकोड करके बता रहा हूँ. ये ग्रुप 1 थे ये ग्रुप 2. नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर इन दिस राउंड the people from a group like a team from a group 1 they will going to play match with each team from group 2. now combination देख लो let's say यहाँ पे 3 टीम आ गई A B C and from here also X Y and Z. So A will going to play with all these 3 team. Similarly B will going to play with all these 3 team. C will going to play with all these 3 team और vice versa. Vice versa means X X जाएगा सबके साथ प्ले करेगा Y भी सबके साथ प्ले करेगा मतलब A B C के साथ. Hope this round is like you are able to understand what I am saying. A प्ले करेंगे X के साथ फिर Y के साथ फिर Z के साथ. Similarly B will going to play with each of these 3 player. और इफ यू आर सेइंग चलो ऐसे उल्टा देख लो तो देख लो एक्स भी देखो ए के साथ भी प्ले करेगा एक्स बी के साथ भी एंड सी के साथ भी. होप इट इज क्लियर. सो इन दिस स्टेज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इफ यू सी केयरफुली माय लाइक लेट्स से ए बी सी लिख लेते हैं इससे समझ में आ जाएगा एक्स वाई जेड. इफ आई सी ओनली दिस पार्ट यहाँ पे अगर मैं फोकस करूँ ए के ऊपर ए पे अगर मैं फोकस बना के रखूँ तो ए कितने मैचेस खेल रहा है इस राउंड में हाउ मेनी मैचेस हियर ही इज गोइंग टू प्ले. A will going to play with one match with X, one match with Y, one match with Z. So A is going to play 3 match in this round. Similarly, B, how many match B going to play? He is also going to play 3 match. C is also going to play 3 match. So how many matches have took in this round? In total, there is 9 matches. समझ रहे हो 9 मैच हो गए यहाँ पे. सो जिसने मुझे आंसर बोला था ये 28 दिस वाज इनकरेक्ट. 28 आंसर नहीं है. होप इट इज क्लियर. ठीक है क्योंकि देख लो यहाँ पे ये 20 और ये 9 29 तो यही हो गए तो 28 तो होगा ही नहीं. राइट. एंड प्लीज गाइस अवॉइड बैकग्राउंड नॉइज. थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है आजकल. ओके इफ इट इज क्लियर कि यहाँ पे कितने मैचेस हुए अगर ये समझ में आ जाए तो लेट्स गो अहेड आगे बढ़ते हैं. नाउ फ्रॉम हियर व्हाट हैपेंड अब जो नेक्स्ट स्टेज था और यू कैन से सेमीफाइनल स्टेज. सेमीफाइनल में क्या हुआ ना और वी कैन सिंपली से स्टेज 3 क्योंकि हम स्टेज लिखते आ रहे तो हम स्टेज 3 कह लेते थे. तो स्टेज 3 विच इज आवर सेमीफाइनल स्टेज
What happening here? The top two team from each group, let's say group वन के top two team कौन से हैं, A and B, and from group two the top two team was X and Y. These are going to in a semi-final. समझ में आ रहा? एक बार मैं रीड कर लूँ, यही है ना? तो मैं पता चला कर दिया, वैसे सवाल बाद में पता चला वो पॉइंटर था ही नहीं. In team in a okay, each team in a group one play against every team in a group two with points awarded as in the pool stage. Okay. Mm, every team in the group, yeah. At the end of the sixth stage, the top two team in each group, yeah, according to their pointers. अब pointers कैसे calculate कर रहे हैं? They are calculating points from adding these all points. In total point count कर रहे हैं. अब ऐसा नहीं कि इसको भूल जाओ, यहाँ पे जो pointers थे, यहाँ पे जो pointers थे, उसको count करने के बाद जो टीम यहाँ पे आएंगी, ठीक है, उसको हम काउंट कर रहे हैं. So in this stage there we will say the two team from here in the group वन, और यहाँ पे ग्रुप वन हो गया, ये ग्रुप टू हो गया. तो दो टीम यहाँ से आई है, दो टीम यहाँ से आई है. होप इट इज क्लियर. टू टीम फ्रॉम इच एक ग्रुप, दे आर गोइंग टू इन द सेमीफाइनल. अब क्या हो रहा है? लेट्स सी व्हाट हैपनिंग एक्चुअली इन सेमीफाइनल. Advance to semi-final with the top team in the group one playing the second team from the group two and vice versa. Okay, your top team in the group one is going to play. Okay, now what happening here? Let's say दो टीम यहाँ पे आ गई, मैंने जैसे बोला, यहाँ पे लेट्स से ए आ गई है, यहाँ पे बी आ गया, एंड यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे वाई आ गया. हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सेट समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ. ए मैं बोल रहा हूँ ए वॉज अ टॉप टीम, ये रैंक वन टीम है ग्रुप वन का, ये रैंक टू है. सिमिलरली ही इज एक्स इज अ रैंक वन, वाई इज अ रैंक टू. अब यहाँ पे क्या हो रहा? ए मैच खेलेगा वाई के साथ एंड बी मैच प्ले करेगा एक्स के साथ. हाउ मेनी मैचेस टोटल? टू मैचेस. होप इट इज क्लियर. यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. अब यहाँ से जो भी विनर होगा, लेट्स से यहाँ से एक विनर है, यहाँ से कोई एक विनर है, जो भी विनर होगा वो आएगा फाइनल में. दो टीम जो ए और एक्स में से जो जीतेगा और बी और सॉरी ए वाई में से जो जीतेगा और बी एक्स में से जो जीतेगा वो आएगा सेमीफाइनल में आएगा. एंड हियर यू विल फाइंड द टू टीम. यहाँ पे 1:1 होगा, जो भी जीतेगा यहाँ से ही विल गोइंग टू विन द टूर्नामेंट. ठीक है, द टीम दिस टीम विल गोइंग टू विन द टूर्नामेंट. अब यहाँ पे कितने मैचेस हो गए? वन मैच फ्रॉम हियर. नाउ काउंट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस. 20 from the first stage, 9 from the second stage, plus 2 from the third stage, plus 1 from the final round. How many total? Total is nothing but 32. Hope it is clear. समझ रहा है? तो आंसर इज 32. Am I audible? Guys, am I clearly audible? To let me know. ओके, सो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? 32. अब देखो, मैंने सिर्फ सेट समझा, अभी हमने कुछ सॉल्व भी नहीं किया, हमने कुछ दिमाग नहीं लगाया. जस्ट वी रेड द सेट एंड हमने उसको ही डिडक्ट किया, हमने सेट समझा कि सेट में क्या क्या रहा है. तो हमने यही डिडक्ट करके ही हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया. सो यू कैन सी इन एक्चुअल पेपर ऑल्सो, एक क्वेश्चन जो होता है ना गेम से टूर्नामेंट्स का, वो आप इजीली बना सकते हो जस्ट रीडिंग एंड डिडक्टिंग द सेट. सिर्फ सेट रीड करो और उसे डिडक्ट कर दो, अच्छे समझ जाओ ना अच्छे से, एक क्वेश्चन तो आप एनी डे बना लोगे. दिस इज द समथिंग द यूनिक थिंग इन GNT. गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में बहुत बढ़िया चीज है कि एक क्वेश्चन तो आप इजीली बना लोगे जस्ट बाय डिडक्टिंग द पॉइंटर्स और देयर लाइक गिवन सेट, जो भी है सेट. लेट्स गो एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेट समझा है अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय टीम विच एडवांस टू सुपर स्टेज इज एट लीस्ट. चलो, अब मैं सेट समझ लिया था, अब मुझे लगता है टीम के साथ जाना पड़ेगा. टीम मुझे बनाने पड़ेंगे, कितने टीम्स, कौन से टीम कहाँ पे जाएंगे. तो अगर सेट ये समझा है तो लेट्स कम. अब जो कोर पार्ट था जो मैं नहीं समझा है उस पे आते हैं. जो कोर पार्ट है उस पे आते हैं. एंड आई थिंक मैं आज एक ही सेट ले पाऊंगा, बाकी मैं दो सेट आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. वी विल डिस्कस दो सेट इन नेक्स्ट क्लास. बट ये समझ लिया तो बाकी भी आप कर लोगे.
क्योंकि सिमिलर ही रहते हैं इसके सेट्स। और जो मिक्स सेट्स है वो हम अपकमिंग डेज में करने ही वाले हैं। लेट्स कम विथ स्टेज वन। अब मैं इसमें यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे टेबल काइंड ऑफ थिंग मान लेता हूँ। दिस इज माई स्टेज वन। लेट्स डिवाइड दिस इनटू स्टेज वाइज। फिर इसके बाद आएगा सुपर सिक्स। ठीक है, सुपर सिक्स आ गया। यार लाइन ले ही लो ना, क्या आलसी। आलस ज्यादा भी अच्छी बात नहीं है। लाइन बना देता हूँ, रुक जाओ। लेट्स डिवाइड दिस। स्टेज वन यहाँ पे हो गया। एंड दिस इज माय सुपर सिक्स स्टेज। क्या क्या बन गया। देन द फाइनल राउंड के पहले वाला सेमीफाइनल एंड देन लास्ट वन इज फाइनल। चलो, दिस इज स्टेज वन। ओके, यहाँ भी एक लाइन कर लो। चलो ठीक है यार, छोड़ो। इतना अच्छा परफेक्शन नहीं है मेरे में। नाउ दिस इज सुपर सिक्स एंड दिस इज द सेमीफाइनल एंड दिस इज द फाइनल। नाउ लेट्स से यहाँ पे हमने सुपर सिक्स स्टेज में हमारे पास दो ग्रुप्स, एज दे मेंशन। उन्होंने क्या क्या कहा था हमें कि यहाँ पे आपको पुल ए मिलेगा एंड द सेकेंड वन इज पुल बी मिलेगा आपको। यहाँ पे पुल ए होगा एंड समवेयर अराउंड हियर इज पुल बी। ओके, सो यहाँ पे जो टीम्स हैं, आई डोंट नो कौन से टीम्स हैं, तो मैं नेमिंग नंबरिंग कर देता हूँ। पुल ए के मैं टीम को बोलता हूँ A1, A2, A3, A4, A5। पुल बी की टीम को मैं कह देता हूँ B1, B2, B3, B4, P5। ओके, नाउ इन दिस पुल ए। अब देखो, समझते हैं, पहले आगे नहीं जाते, यहीं पे समझते हैं। यहाँ पे कितने मैचेस हो रहे हैं? 10 मैचेस हो रहे हैं। 10 मैचेस हो रहे हैं हर एक पुल में। यहाँ 10 मैच, यहाँ पे 10 मैच। तो 10 10 मैच हो रहा है। ए कितने मैच खेलेगा? ए मस्ट बी गोइंग टू प्ले 1 2 3 4। चार के साथ तो मैच खेलेगा ही। तो 4 मैचेस खेलेगा तो क्या हो सकता है? द पॉसिबिलिटीज, इधर ही इज गोइंग टू विन ऑल 4, और या तो 3 मैच जीतेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अकॉर्डिंगली ऑर्डर में समझा रहा हूँ, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ ये सबसे पावरफुल टीम है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, लेट्स से ए ने 4 मैच जीत लिया, बी ने भी 4 मैच जीत, सॉरी A2 ने भी 4 मैच जीत लिया, A3 ने भी 4 मैच जीत लिया। ओके, नाउ अगर ये चार चार मैच जीत चुके हैं, सॉरी, चार कैसे जीतेगा? ए ने अगर 4 जीता है तो मैं आई एम सेइंग दिस वन इज गोइंग टू विन 3 मैच, दिस इज गोइंग टू विन 2 मैच। ठीक है, चार चार कैसे जीतेंगे? हाँ समझ गया अब। अभी आई गॉट द पॉइंट। चार तो जीत भी नहीं सकता वो। ठीक है, क्योंकि देखो, ए ने जीता है तो ए ने इसको तो हराया होगा ना, डेफिनेटली फॉर श्योर, तभी तो ये 4 जीत गया। ये चारों को हराया तभी ये जीता है 4 पॉइंट। राइट, तो ए ने 4 पॉइंटर्स बना लिए। आई एम सेइंग A2 ने 3 पॉइंटर्स बना लिए, A3 ने 2 पॉइंटर्स बना लिए। व्हाट हैपेंड विद A4? A4 एक ही मैच जीता है, उसने 0 जीता। गॉट द पॉइंट? ये समझ रहा? अजम्पशन है भाई, पूरा अजम्पशन पे खेल रहा हूँ। सिमिलरली हियर ऑल्सो, 4 3 2 1 एंड 0। आई एम अज्यूमिंग दिस थिंग। पॉसिबिलिटी है कि ये भी 3 मैच जीत जाए। राइट, दिस इज द पॉसिबिलिटी। और ही विल गोइंग टू विन 0। समझ रहा है? ये देखो, एक और पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये काम में आ सकता है अभी आगे जाके। ये 3 मैच जीत चुका हो ये भी। तो बट इज इट पॉसिबल टू विन 3 मैचेस? एनीवन? इज इट पॉसिबल टू विन 3 मैच? यस यस, कोई बोलना चाहेगा? अभी दे, कैसे जीतेगा भाई? 3 मैच कैसे जीतेगा?
दो ही जीत सकता है। मैं देखना चाहता था कितना दिमाग लगा रहे हो। समझो, समझो, देखो। B3 या फिर A3 कभी भी तीन मैच नहीं जीत सकता इस केस में। क्यों नहीं जीत सकता? सीधे A2 और A1 ने तो पक्का पक्का इन दोनों, A1 ने तो इसको हराया ही होगा ना। A1 ने हराया, A2 ने भी हराया होगा इन तीनों को। अब ये A3 खेलेगा किसके साथ मैच? A3 मस्ट बी गोइंग टू प्ले विथ A4 और A5 के साथ। तो जब वो मैच ही दो खेल रहा है विनिंग वाले, तो तीन कैसे जीत पाएगा वो? समझ रहे? समझे नहीं समझे? ओके, दैट्स वाई मैंने वहां पे कर दिया। एक आई एम अज्यूमिंग, सब कुछ अजम्पशन पे खेल रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं फिक्स नहीं है यहाँ पे, बिकॉज नथिंग इज गिवन अबाउट दिस, लाइक कितने हुए क्या। अब यहाँ पे अब मैं मैचेस जीता विनिंग करवाया। आई एम नॉट काउंटिंग अ पॉइंटिंग पॉइंटर्स, मैं पॉइंट अभी काउंट नहीं करवा रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग अ मैचेस लाइक दे विन। ओके, पॉइंट्स में काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मैचेस काउंट कर रहा हूँ गाइस। तो पॉइंट्स मत बोलना कि पॉइंट्स अपने गलत काउंट किया। आई एम जस्ट काउंटिंग देयर मैचेस। इतने मैच तो जीते होगे। पॉइंटर्स की अगर बात कर लूँ, दीज आर द मैच, ये होगा पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होंगे? एज दे टोल्ड दैट विनर को कितना मिलेगा? दो मिलेगा विनिंग के लिए। तो इट मीन्स इंटू टू कर दो, तो 4 2 8 पॉइंट्स ईयर, 3 2 6 पॉइंट ईयर, 2 2 4 पॉइंट ईयर, ईयर टू ईयर जीरो। सिमिलरली 8 6 4 2 0। नाउ इफ यू सिंपली सी हियर, हमें बोला गया कि टॉप थ्री टीम जाएंगी, वो नेक्स्ट राउंड में जाएंगी। दीज आर द टॉप थ्री टीम इन पूल है, दीज आर द टॉप थ्री टीम इन पूल बी। तो इनको आगे भेज देते हैं, आगे भेज देते हैं इन्हें। इन फर्दर राउंड इट विल गोइंग टू इन ग्रुप 1, और ये जो नीचे वाले जाएंगे वो ग्रुप 2 में चले जाएंगे। ग्रुप 1 में कौन कौन आ गया? A1, A2, A3। सिमिलरली ग्रुप 2 में कौन कौन आ गया? B1, B2, B3। होप इट इज क्लियर। A1 में कौन गया? ये तो मतलब कॉमन सेंस है भाई, कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। अब देखो, A1 जो बंदा है ना, ये प्ले करेगा B1, B2, B3 के साथ। सिमिलरली A2 इज गोइंग टू प्ले विथ all these three, and similarly A3 is going to play with all these three. Now, अब let's see, let me come to a set, एक बार पढ़ लूँ, कुछ और गिवन था। The two or more team end up with the same number of points at the end of the pool or Super 6 stage. The tie is resolved using tie break rule. Okay. Advanced final, the top. Okay. चलो ठीक है। अब in this case, A1 is going to play with B1, B2, B3। वी डोंट नो कौन जीता है कौन नहीं जीत रहा। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कह सकता कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा। ठीक है, यहाँ पे तो मैं बता सकता था कि ये अजम की है, बट यहाँ पे वी कांट अज्यूम, क्योंकि यहाँ से मुझे टॉप टू टीम को आगे लेके जाना है। और फ्रॉम हियर ऑल्सो आई हैव टू चूज टॉप टू टीम इन द नेक्स्ट राउंड। तो आई एम अज्यूमिंग फ्रॉम हियर दीज आर द टॉप टू टीम, एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो दीज आर द टॉप टू टीम। दे विल गो फॉर अ फाइनल सेमी राउंड। ओके, सेमी फाइनल राउंड, दैट इज A1 एंड A2। सिमिलरली B1 और B2। मैचेस किसके बीच में हो रहा है? A1 विल प्ले विथ B2 एंड A2 विल प्ले विथ B1। होप इट इज क्लियर। A2 विल प्ले विथ B1। अगर ये क्लियर है तो आगे देखते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन डायरेक्टली नाउ, क्योंकि इससे ज्यादा मैं डिडक्ट नहीं कर सकता हूँ पॉइंटर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या पूछा आपने। द नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय टीम विच एडवांस टू सुपर 6 स्टेज इज एटलीस्ट, कम से कम कितना पॉइंट होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेज में जा सके। तो गाइस सी हियर, मिनिमम टू मिनिमम कितना पॉइंट हो सकता है कि आगे जाए? यू कैन सी दिस, कितना दिख रहा है? चार तो चाहिए ना कम से कम तो, मिनिमम टू मिनिमम 4 पॉइंटर्स चाहिए आगे जाने के लिए। दिख रहा है?
हैव यू सीन द 4? अगर ये दिख रहा है तो इसका आंसर क्या हो गया? वो पूछ ही रहा है वही। सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि यार सुपर 6 स्टेज में एडवांस होने के लिए, एडवांस मतलब जाने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए? तो यू कैन सिंपली से मिनिमम 4 पॉइंट वी नीड टू गो इन सुपर 6 स्टेज, right? So you can mark simply 4 as the answer. If it is clear, let's go ahead, read the next question. The total points, like a super 6 point plus carry forward point of a team that advanced to the semi-final is at least, कम से कम कितना हो सकता है? कम से कम, at least mean what? Minimum to minimum, minimum to minimum, it means सबसे lowest वाले को हमें ढूंढना है, कितना चाहिए? So if you can see the option 2, 4, 6 and 8, it is mentioned there. Let's try to find here कि देखते हैं मिनिमम से मिनिमम कितना चाहिए होगा। लेट्स से सो फार हमें पता है कि A1 के पास 8 पॉइंटर्स ऑलरेडी है। ही ऑलरेडी हैड 8 पॉइंटर्स, A2 6 है, A3 4 है। हियर आल्सो B1 हैड 8 पॉइंटर्स, ही हैड 6, ही हैज 4। मिनिमम टू मिनिमम कितना चाहिए कि वो एडवांस हो नेक्स्ट स्टेज में? तो देखो, अब यहाँ दिमाग लगाओ थोड़ा, यूज योर ब्रेन, व्हाट यू कैन डू। द फर्स्ट वन, A1 इज गोइंग टू प्ले विथ ऑल दिस 3 पर्सन। ये तीनों के साथ खेल लिया A1 ने मैच, ठीक है? या फिर मैं एक ही, देखो मैं एक ही को कंसिडर करूंगा, मैं दोनों को नहीं लूंगा। मैं बोल सकता हूँ ना कि मैं बोल रहा हूँ कि A1 ने तो सारे मैच जीत गए, A1 विल गो विन ऑल द मैचेस। लेट अज्यूम, अजम्पशन है भाई, कुछ भी अजम कर सकते हो, फुल ऑफ अजम्पशन, अज्यूम इट। A1 won all the matches, it means A1 won all the 3 matches, it means 3 into 2, 6 pointers he won from here. Similarly, A2 won all the matches, A2 won all the matches, A2 won all the matches, it means 3 into 2, that is 6 pointers from here. A4, he also won all the matches, मैंने क्या बोला? A3 also won all the matches, 6 pointers he also got. टोटल पॉइंटर्स कितने बन रहे? 6 plus 8 was 14, and here also 6 6 12, and 6 for plus 4 10। ये चारों बंदे भाई 0 0 पे सेटल हुए, ग्रुप बी वाले। तो टोटल पॉइंटर इनके कितने बन गए? 8 6 4। एंड as we know because of a rule, I have to select 2 people from group 1 and have to select 2 people from group 2, right guys? ग्रुप 2 से मैं अगर मैं 2 पीपल को चुनूंगा तो ये दिख रहा है, ये सबसे छोटा नंबर क्या मिलेगा मुझे? 6 मिलेगा, 6। क्योंकि मैं A3 भले ही 10 ला ले बट ये एलिमिनेट हो जाएगा। B3 कितना भी कुछ, मतलब ये तो एलिमिनेट वैसे ही है, खत्म करो, ये तो हार ही चुका है। सो मिनिमम टू मिनिमम द पर्सन हु विल विन द मैच और गो टू द सेमीफाइनल, इट इज 6। एटलीस्ट 6 मस्ट बी नीडेड टू अ प्लेयर टू गो टू अ सेमीफाइनल, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर इज ऑप्शन सी और ऑप्शन 3, 6। समझ रहा है जनता कहाँ पे गई? देखो थोड़ा सा गंदा है यार, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इजी है। जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे मुझे तो बहुत दिन लगे थे समझने में। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन। सेकंड थर्ड कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सेम ही है। नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय अ टीम विच एडवांस टू सुपर 6 स्टेज इज एटलीस्ट, मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए, मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए कि वो नेक्स्ट स्टेज में जा सके सुपर 6 में? तो यू कैन सी हियर, सुपर 6 में जो बंदा गया उसका मिनिमम कितना पॉइंटर है? 4 है, 4 है ना? मिनिमम 4 अगर है तो वो सुपर 6 में जा सकता है। बट ये 2 वाला जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, नॉट पॉसिबल। सो ही मस्ट बी गोइंग टू इन लाइक एडवांस टू सुपर 6 स्टेज और नेक्स्ट स्टेज। वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 8 2 2 2 2 2, 8 6 2 2 2, 8 6 2 2 2। give me a moment, see let's see। so sorry guys, the screen is not visible now, let's see from now onward, I'm explaining it once again। देखो, थिंग इज, टॉप 2 टीम्स जो है हमने उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, ठीक है? टॉप 2 टीम को हमने जितना था देना हम दे दिया। नाउ वी लेफ्ट विद 3 मैचेस, बिकॉज क्वेश्चन हमें मिनिमम बोल रहा है,
हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। हम अजम अगर कुछ कर रहे हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो एटलीस्ट पूछा है मतलब मिनिमम हमें मिनिमाइज करना है। तो जो भी टैक्टिक हम अपना सकते हैं मिनिमाइज करने के लिए हम वो करेंगे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इस केस में मुझे पता है मुझे 3 राउंड को आगे लेके जाना है। तो मेरी ट्राई ये रहेंगी कि जो थर्ड बंदा है ना, उसको मिनिमम से मिनिमम में पहुंचाओ। मतलब यहाँ पे मैंने अभी 4 मार्क लाइक 2 विन विन पे मैंने आगे पहुंचाया था, बट माई ट्राई शुड बी मिनिमम टू मिनिमम पे इससे आगे पहुंचाओ। मिनिमम में क्या कर सकता हूँ, ही ऑल्सो विन 1 मैच, ही विन 1 मैच, ही विन 1 मैच। ठीक है, राइट। अगर तीनों ने एक एक मैच जीता तो मिनिमम 2 पे तो ये आगे जा सकता है ना, राइट। मिनिमम 2 पे ये तो बंदा आगे जा सकता है ना। समझा नहीं समझा? बाकी के लोग नहीं जाएंगे, बाकी के लोग के पास दो दो पॉइंटर्स भी होंगे फिर भी नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अज्यूम करके कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी अभी भी नहीं दिख रहा। अरे यार, यार शिट, क्यों मैं मोमेंट गाइस। नो सी, अब जैसे मैं समझा रहा था कि ये 2 पे तो आगे जा ही सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको भी 1 दिया, इसको भी 1 दिया, इसको भी 1। एटलीस्ट 2, कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 2 इज द नंबर जिससे ये आगे जा सकता है, राइट। बट इस केस में आप बोल सकते हो कि ये B4 B5 क्यों नहीं जा सकता। तो यार B4 B5 जा सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं जा सकते। यहाँ से A4 A5 में से भी कोई एक जा सकता है। तो दैट इज समथिंग, इज अ डायलेमा कि किसे भेजना है, बट हमें मिनिमाइज करना है। तो हम बोल सकते हैं कि एक टीम जो है वो मिनिमम टू मिनिमम 2 पे भी जा सकती है आगे। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि मिनिमम टू मिनिमम 2 पे भी वो आगे जा सकता है। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ओके, सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो था उसमें पूछा था कि मिनिमम कितने पे वो सुपर 6 स्टेज से सेमीफाइनल में जा सकता है। तो मैंने क्या किया, व्हाट आई सिंपली डिड, उप्स, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपली मैंने ही बोला, आई सिंपली सेड A1 ने सारे मैचेस जीत लिए जो B1 बी ग्रुप 2 के साथ हुए थे। A2 ने भी सारे मैचेस जीत लिए जो ग्रुप 2 के साथ हुए थे। A3 ने भी सारे मैचेस जीत लिए जो ग्रुप 3 के साथ हुए, सॉरी ग्रुप 2 के साथ हुए थे। एंड हियर, यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे ये मिला देखने को कि जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 से तो A1 और A2 ही सिर्फ आगे जा सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ हाईएस्ट रैंकिंग 14 12। एंड ग्रुप 2 से ही मुझे 2 टीम को आगे रखना है। दीज आर द 2 टीम, 8 and 6। नाउ यू मस्ट आस्क मी अ क्वेश्चन कि कुछ ऐसा कर सकते हो आप कि ये जो है B3 में जो ये 2 है, ठीक है, इसका B3 में इसका अगर 2 है, तो कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको 4 बना दे और इसको आगे भेज दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसको कम से कम मैं इसको 6 से ज्यादा करूंगा तभी आगे जा सकता है, या फिर 6 के इक्वल करना पड़ेगा तभी मैं आगे भेज सकता हूँ, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस हम इसे नहीं भेजेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, आई सिंपली सेड कि 6 इज द डायरेक्टली आंसर, बिकॉज 6 से छोटा मैं बना नहीं सकता हूँ। मैं इससे बड़ा बना सकता हूँ लेकिन इससे छोटा नहीं बना सकता हूँ। दैट्स वाई सेकंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया था 6। नाउ फोर्थ वन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस बाय अ टीम दैट फेल्ड टू एडवांस टू द सेमीफाइनल इज। मैक्सिमम नंबर ऑफ विन, मैक्स टू मैक्स कितना विन होने के बाद भी कोई टीम एडवांस में ना जाए, ठीक है, ये हमें बताना है। मैक्सिमम होने के बाद भी एडवांस ना करे मतलब सेमीफाइनल में, ऐसी टीम कितना हो सकती, क्या हो सकती है उनकी मतलब पॉइंटर्स। तो इफ वी सी, बिकॉज आई हैव टू मैक्सिमाइज, मैक्सिमम करके भी उसको आगे नहीं पहुंचाना है। नाउ व्हाट आई विल ट्राई टू मेक समथिंग अ टाइप ब्रेक, और कुछ यहाँ पे और इनोवेटिव सोचना पड़ेगा। क्या सोच सकते हो, कितना मैक्स कर सकते हो। ये मैक्स 8 तो मैंने बना लिया ऑलरेडी, कि देखो यहाँ पे 8 होने के बाद भी ये जा नहीं रहा है, डिस्पाइट बीइंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8, ही इज नॉट एडवांस टू सेमीफाइनल, राइट।
तो 8 तो हो गया है, और यहाँ पे 8 पे आगे गया भी है, ग्रुप 2 में तो 8 पे गया भी है। तो मैक्सिमम 8 मैं आंसर मार्क कर सकता हूँ, बट यहाँ पे है नहीं ऑप्शन में। नंबर ऑफ विन्स बाय टीम दैट फेल टू एडवांस। ओके, नंबर ऑफ विनिंग्स पूछ रहा है, जीता पूछ रहा है। पॉइंटर्स नहीं पूछ रहा, सॉरी, यहाँ मैं पॉइंट्स गिन रहा था, यहाँ पे पॉइंटर्स नहीं है, विनिंग पूछ रहा है। तो विनिंग चलो गिन लेते, कितने विनिंग्स हो। ही वॉन हियर वन मैच। ओके, और सिंपली काउंट कर लेते हैं, चलो। A3 का पहले काउंट करते हैं, A3 ने कितना जीता है। यहाँ पे A3 में सुपर 6 स्टेज में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट A3, A3 ने स्टेज 1 में कितने पॉइंट, एक मैच जीता था, ठीक है। और लेट्स से A3 हियर वॉन 2 मैचेस। क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग में इसे क्या कर रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 मैच जीतने के बाद, यहाँ पे 3 मैच जीतने के बाद, टोटल कितने मैच हो गए, 5 मैचेस। 5 मैचेस जीतने के बाद भी ही कुडंट लाइक सेटल्ड इन सेमीफाइनल। तो मैक्स टू मैक्स 5 मैच हो सकता है। यहाँ पे बी का देख लेते हैं, एनीथिंग पॉसिबल फॉर बी, क्योंकि B1 तो नहीं देख सकते, B2 को भी नहीं, या तो यही है यार, A3 को ही देख सकते हो आप, क्योंकि A3 वही बंदा है जो सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम जो इसका आंसर आएगा, दैट इज 5 मैच। तो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन 3, 5। 5 मैचेस जीतने के बाद भी वो बंदा आगे नहीं गया। समझ रहे हो क्या किया है मैंने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं अरेंज कर रहा हूँ, एंड नथिंग। बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे कहा था मिनिमम, तो मैंने यहाँ पे 1 रखा। सेकंड, लास्ट क्वेश्चन में मुझे बोला मैक्सिमाइज करना है मैचेस को, तो मैंने कहा चलो भाई ये 2 मैच जीत गया, इसने एक जीता, ये 0 जीता, चलो ऐसे मान लो। एंड इफ दिस इज अ कंडीशन, यहाँ पे 2 मैच जीत गया, यहाँ पे 3 मैच जीत चुका है, 5 मैच टोटल हो गए मैक्सिमम, फिर भी आगे वो नहीं गया। सो दैट्स इट। सो फॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5। आई होप दिस सेट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर नहीं समझाओ, एक बार रिकॉर्डिंग देखना, बहुत लंबा मैंने करवाया, बहुत धीरे धीरे करवाया। ये सेट अच्छे से समझ लो, आगे में आपको इजी जाएगा, आप इजीली कर पाओगे। सिमिलर काइंड ऑफ सेट आई हैव गिवन टू यू फॉर अ होमवर्क। दिस इज अ सेट, यहाँ पे 16 टीम्स हैं, ठीक है। 16 टीम है, 2 पूल में डिवाइड करेंगे, दिस इज अ हॉकी टूर्नामेंट। ओके, सेम है, पूल वाइज है, बस 3 नंबर बढ़ गए। पहले 5-5 की टीम थी, यहाँ पे 8-8 की टीम है। लॉजिक वॉज सिमिलर ऑलमोस्ट। ट्राई करो, जो भी है जैसा आ रहा आपको। वी विल डिस्कस दिस सेट इन अपकमिंग, लाइक अ डाउट सेशन, और मे बी इन अपकमिंग सेशन, ठीक है। होप इट इज क्लियर गाइस। अगर अभी भी किसी को कुछ डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन अ Q&A पार्ट, and yeah, we are going to start a Q&A. Whatever questions you have, you can ask me. I will definitely try to answer it. Apart from this, if you are looking for a mentorship, you can look this like a, ये देख सकते हो ये plans. The important thing is here 69 series booklet and master series. This is important. I would recommend you all of you to look for joining this as a live classes. ये हम start करेंगे once we will cover your around 60% of important topics, और जो कैट में आते हैं वो टॉपिक्स, उसके बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे। एंड टिल द टाइम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करते रहो, हैप्पी रहो, ठीक है। डीमोटिवेट मत हो, बहुत से लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, टाइम कम है और वॉट एवर दे थिंकिंग, बहुत टाइम है गाइस, आराम से करो, अच्छे से करो। इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, और यू वांट all the slides and the homework questions, you can simply join our this like a group, and the community links is in the description. All the very best. Jai Siya Ram.